نعرہ تکبیر، جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء ہند۔ ایک تجویز ہے جس کو میں پڑھوں گا، ایک نئی سیاسی پارٹی کی تشکیل کی ضرورت۔ آزادی کے بعد جمعیت کے اکابر نے پارلیمانی سیاست سے بحیثیت جماعت الگ ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ ذرا غور سے سنیے، مگر آزادی کے بعد کے طویل عرصے میں جمہوریت کے نام پر یہ تلخ تجربہ ہوا کہ ملک کے تمام وسائل پر چند لوگ قابض رہے، جنہوں نے مسلسل اقلیتوں اور پسماندہ طبقات کا استحصال کیا۔ آج تک ملک میں جو بھی حکومت بنی اس نے اقلیتوں اور کمزور طبقات کے ساتھ انصاف نہیں کیا، جس کی واضح مثال یہ ہے کہ فرقہ وارانہ فسادات کے متاثرین کو معاوضہ دینے اور فساد میں انتظامیہ کو ذمہ دار قرار دینے کے لیے قانون بنانے کی بات بیشتر سیکولر پارٹیوں کے رہنماؤں نے مان لی، مگر جن ریاستوں میں ان سیکولر پارٹیوں کی حکومتیں ہیں وہاں بھی آج تک یہ قانون نہیں بن سکا۔ اسی طرح چارہ فسطائیت کے مقابلے میں سیکولر کہی جانے والی جماعتوں کی واضح طور پر ناکامی نے ملک کے ماحول کو بگاڑنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس لیے اب تک کے مسلسل کڑوے تجربات نے ہم کو اس مسئلے پر غور کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ لہذا جمعیت علماء ہند کا یہ اجلاس عام اقلیتوں، دلتوں، پسماندہ طبقات وغیرہ ہم خیال سیکولر افراد پر مشتمل ایک سچی حقیقی سیکولر پارٹی کی تشکیل کے لیے وسیع جائزے کی ضرورت محسوس کرتا ہے، جس کے لیے ایک 7 رکنی کمیٹی کی تشکیل کی جاتی ہے جو زیادہ سے زیادہ 3 ماہ میں اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ کمیٹی کے افراد کے نام یہ ہیں: حضرت مولانا سید اسعد مدنی صاحب صدر جمعیت علماء ہند، حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب اعظمی، حضرت مولانا سید احمد بخاری صاحب شاہی امام جامع مسجد دہلی، مفتی محمد سلمان منصور پوری، جناب شکیل احمد سید صاحب ایڈوکیٹ اور محمود۔ یہ 7 لوگوں پر کمیٹی بنائی گئی ہے جو 3 مہینے کے اندر اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ میں دارالعلوم ندوۃ العلماء کے جواں سال استاد حضرت مولانا سید سلمان ندوی صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد۔ بزرگوں، دینی اور ایمانی اور انسانی بھائیوں، جو نہیں ماننے والے تھے، ضدی تھے، ہٹ دھرم تھے، منکر تھے، انہوں نے اپنے پیغمبروں سے کہا تھا لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال باہر کریں گے، أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تمہیں ہمارے مذہب میں واپس آنا پڑے گا، ہماری تہذیب کو قبول کرنا پڑے گا، ہماری روایات کو ماننا پڑے گا، ہمارے طور طریق کو اپنانا پڑے گا۔ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، تو خداوند قدوس نے اپنے بندوں کو یہ پیام دیا لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ان ظالموں کو تباہ و برباد کر دیں گے، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ،
اور پھر اس کے بعد ملک تمہیں سونپ دیں گے، تمہیں بسا دیں گے. ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید. لیکن یہ خوشخبری انہی لوگوں کے لیے ہے جن کو اس بات کا خوف ہے کہ کل ہمارے حضور انہیں حاضر ہونا ہے، جواب دہ ہونا ہے، اور جن کو میرے عذاب کا ڈر ہے. میرے بزرگوں، یہ آیت کریمہ ایسا لگتا ہے کہ ابھی نازل ہوئی ہے، اور اس آیت کریمہ میں جو تصویر کشی کی گئی ہے وہ موجودہ بین الاقوامی اور ملکی حالات کی گئی ہے. کہنے والے ضدی، ہٹ دھرم، کہنے والے اوباش، کہنے والے قاتل اور مجرم یوں کہہ رہے ہیں امن و سلامتی کے علم برداروں سے، کہہ رہے ہیں اخلاق و انسانیت کے مشعل برداروں سے، یوں کہہ رہے ہیں لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، تمہیں اس ملک کو چھوڑ دینا پڑے گا، نکل جاؤ اس ملک سے، پاکستان چلے جاؤ، ورنہ پھر ہمارے طور طریقے اختیار کرو، ہماری روایات کو اپناؤ. تو خدا تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے سات آسمان کی بلندی سے اور عرش بری سے، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ان ظالموں کو ہم تباہ و برباد کریں گے، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور ان کے بعد تمہیں زمین میں بسائیں گے. یہ خدا تعالیٰ کا فیصلہ ہے. یہ امت مسلمہ اپنے پروردگار کو اس طرح نہیں مانتی کہ جس طرح وہ مانتے ہیں جو کبھی اسے تالے کے اندر بند کر دیتے ہیں، کبھی اس پر دروازہ چڑھا دیتے ہیں، کبھی ہفتے میں کسی دن اس کو جا کر پوچھ لیتے ہیں. یہ امت مسلمہ اپنے پروردگار کو اس حیثیت سے مانتی ہے کہ وہی اس کائنات کا متصرف ہے، وہ واحد لا شریک لہ ہے. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہا تھا کہ اے لڑکے، خدا کی قسم اس بات کو یاد رکھنا کہ سارے انسان مل کر اگر تجھے نقصان پہنچانا چاہیں گے تو نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ خدا تعالیٰ نے تیری تقدیر میں نقصان نہ لکھ دیا ہو، اور سب کے سب مل کر تجھے فائدہ پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ خدا تعالیٰ نے تیری تقدیر میں یہ فائدہ نہ لکھ دیا ہو. جس امت کا یہ یقین ہے، جس امت نے وحدانیت پر بھی یقین رکھا خدا تعالیٰ کی، اور جس امت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم المرسلین تسلیم کیا، اور جس امت نے اسلامی شریعت کو آخری شریعت مانا، جس امت نے اس نظام کو آخری نظام مانا، اس امت کو دھمکیوں سے، طاقت سے، سیاست سے، مکر و فریب سے، سازش سے ڈرایا نہیں جا سکتا. اس لیے کہ یہ امت طاقت سے کبھی ڈرتی نہیں ہے، نہ ڈری ہے، نہ ڈر رہی ہے، نہ ڈرے گی. اس امت کو یہ یقین ہے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ سارے انسانوں کا رب ہے، اور خدا تعالیٰ سارے انسانوں کا معبود ہے. اس پر سب سے پہلا یقین ہے. ایک یہ حقیقت ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسری حقیقت یہ ہے کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اللہ کو چھوڑ کر جو لوگ دوسرے سہارے پکڑے ہوئے ہیں، کسی سپر پاور کے دامن سے وابستہ ہیں، جن کی نگاہیں ہتھیاروں پر ہیں، افراد پر ہیں، اکثریت پر ہیں، ان کی مثال قرآن یوں بیان کرتا ہے کہ انہوں نے مکڑی کا ایک جالا بنایا ہے. ان کا گھر مکڑی کا ایک جالا ہے، وہ قلعہ نہیں ہے، قصر نہیں ہے، بلکہ مکڑی کا ایک جالا ہے جو جھاڑو کے ایک تنکے سے صاف کر دیا جائے گا. خدا تعالیٰ کی طاقت ایک طرف اور امریکہ کی طاقت ایک طرف، جو مکڑی کا ایک جالا ہے. اور جس طرح کمیونزم نے دم توڑ دیا، جس طرح انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا، اور 70 سال اس طرح گزارے گئے کہ انہوں نے سلاخوں کے پیچھے انسانوں کو پھینکا، اور اس کے بعد وہ روٹیوں کو ترس کے رہ گئے اور ان کے بت سارے ٹوٹ گئے. خدا کی قسم اسی طرح امریکہ کا شیرازہ بکھر جائے گا. جہاں تک تعلق ہے مدارس اسلامیہ کا، جس کی تجویز مجھے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، تو میں اس بات کا اعلان کر دینا چاہتا ہوں کہ مدارس اسلامیہ کسی چہار دیواری کے اندر صرف نہیں ہے. مدارس اسلامیہ ہر مسلمان کے دماغ کی دھڑکن ہے، ہر مسلمان کے دماغ کی سلوٹوں میں بسے ہوئے ہیں، اس کے دل کی دھڑکن ہے، اس کے ضمیر کی آواز ہے. وہ چاہے مدرسے میں پڑھنے والا ہو یا اسکول و کالج میں پڑھنے والا،
وہ پیدا ہوتا ہے تو مدرسہ اس کے کان میں اذان دیتا ہے، وہ انتقال کرتا ہے تو مدرسہ اس کی نماز جنازہ پڑھتا ہے۔ کون سا مسلمان ہے یونیورسٹی سے وہ وابستہ ہو یا کالج اور اسکول سے وابستہ ہو جس کے ضمیر اور دل سے مدرسے کو کھرچ کے پھینکا جا سکے؟ مدرسے نے ہر مسلم کے دماغ میں لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ بسایا ہے۔ مدرسہ ہمارے رگ و ریشے میں سرایت کیا ہوا ہے، مدرسہ خون کی طرح ہماری رگوں میں دوڑ رہا ہے، مدرسہ ہمارے ریشے ریشے میں ہے۔ مدرسے کو کسی مسلمان کے اندر سے نکالا نہیں جا سکتا، لیکن مدرسہ ہرگز دہشت گرد نہیں ہے۔ جو لوگ اس کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں، اس دھرتی پر اور اس آکاش کے نیچے سب سے بڑے مجرم دہشت گرد وہ ہیں۔ ششو مندر دہشت گردی کے اڈے، RSS دہشت گرد ہے، BJP دہشت گرد ہے۔ نعرہ تکبیر، جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء ہند۔ جو پیش آمدہ خارجی خطرات سے مدارس دینیہ کی حفاظت و صیانت کے لیے تقاضائے وقت و حال کے مطابق تدابیر اختیار کرے، سردست مجلس عمل کے درج ذیل ارکان کے اسماء کا اعلان کیا جاتا ہے۔ بعد میں ان ارکان کے باہمی مشورے سے مزید ناموں کا اضافہ کیا جائے گا۔ اسماء گرامی ارکان متحدہ مجلس عمل: نمبر 1 حضرت امیر الہند مولانا سید اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم صدر جمعیت علماء ہند۔ نمبر 2 مولانا سید احمد بخاری صاحب۔ نمبر 3 مولانا حبیب الرحمان صاحب قاسمی استاد دارالعلوم دیوبند جو اس کمیٹی کے کنوینر بھی ہیں۔ نمبر 3 مولانا انظر شاہ صاحب کشمیری شیخ الحدیث وقف دارالعلوم دیوبند۔ جناب مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی ناظم جمعیت اہل حدیث۔ مولانا محمد شفیع مونی صاحب نائب امیر جماعت اسلامی ہند۔ عبد القدوس کشمیری صاحب سیکریٹری علماء کونسل بمبئی۔ مولانا محمد سلمان صاحب ناظم اعلیٰ مظاہر علوم، اور یہ عاجز سلمان ندوی استاد ندوۃ العلماء لکھنؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات، وقت بہت کم ہے اور بہت کام کی باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ اب آپ کے سامنے جناب ارجن سنگھ صاحب جو بہت پرانے سیاسی لیڈر ہیں اور ایک زمانے سے سیاست سے وابستہ ہیں، ہماری دعوت پر وہ یہاں تشریف لائے ہیں، ہمارے مہمان ہیں۔ ہم ان سے گزارش کر رہے ہیں کہ وہ اپنے خیالات کا مختصر وقت میں اظہار فرمائیں۔ आदरणीय मौलाना असद मदनी जी और इस इजलास में आए हुए सभी आदरणीय नेतागण, मैं मौलाना असद मदनी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया और सदैव की तरह उन्होंने मेरे प्रति अपनी मोहब्बत का इजहार किया। इससे पहले कि मैं अपनी कुछ बात कहूं, मैं कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष महोदया श्रीमती सोनिया गांधी का वो संदेश सुनाना चाहता हूं जिन्होंने जमायत उलमा हिंद के इस कॉन्फ्रेंस के लिए भेजा है। संदेश इस प्रकार है। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि 9 मार्च 2003 को जमीयत उलमा हिंद का 27वां अधिवेशन दिल्ली में हो रहा है। मैं इंतजामिया कमेटी को बधाई देती हूं क्योंकि इसके लिए इससे बेहतर वक्त कोई दूसरा नहीं हो सकता है। आज कुछ तत्व सत्ता के लिए हमारे ऐतिहासिक समाज की एकता,
हमारी परंपरागत मानवतावादी शांति और भाईचारे की उस संस्कृत जिसे भारत ने दुनिया भर में प्रचारित किया है और हमारी शक्ति के स्तंभ सर्वधर्म समभाव के सिद्धांत को चुनौती दे रहे हैं। ऐसे मौके पर यह हम सबको मिली जुली जिम्मेदारी है कि हम अपनी अनेकता के बावजूद इन ताकतों के इरादों को अपनी बेमिसाल एकजुटता के जरिए नाकामयाब करें। जमीयत उलमा हिंद के कंधों पर एक बड़ा दायित्व है। इसके लाखों सदस्यों को देश के कोने कोने में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के संदेश को फैलाना चाहिए। यह न केवल अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बल्कि हमारे चौतरफा विकास में मददगार होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह अधिवेशन अपने मकसद में कामयाब होगा। इस अवसर पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। ये उनका संदेश देने के बाद मैं अपनी ओर से चंद शब्द कहना चाहता हूं। इस देश में आज़ादी के पहले के आज़ादी की लड़ाई की जद्दोजहद के दौरान बहुत से ऐसे मौके आए जब लोगों को अपने दिल पर हाथ रखकर ये फैसला करना था कि वे अंग्रेजों का साथ देंगे कि आज़ादी की लड़ाई के लिए जूझने वालों का साथ देंगे। उस समय भी कई लोगों ने जिसका भी उनको लगा साथ दिया और नहीं दिया। मैं उस तफ्तीश में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन ये हकीकत है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। यह भी हकीकत है कि आज़ाद भारत ने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, आइन बनाया, जिसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे देश के उस महान नेता बाबा साहब अंबेडकर ने निभाई। और वह कॉन्स्टिट्यूशन, वो आइन दुनिया के एक बहुत ही बेहतर तरीके से बनाया हुआ आमीन है, जिसमें हिंदुस्तान में रहने वाला हर शख्स को, चाहे वो उत्तर में रहता हो, चाहे वो दक्षिण में रहता हो, पूरब में रहता हो, पश्चिम में रहता हो, कोई भी भाषा बोलता हो, कोई भी मजहब मानता हो, उन सबको हमारे आईन ने हिंदुस्तान, आज़ाद हिंदुस्तान भारत के नागरिक के रूप में समान अधिकार दिए हैं। और वो अधिकार आज भी हैं और कांग्रेस पार्टी और आप सब मिलकर उसको सदैव सदैव के लिए उनको सुरक्षित रखने में जद्दोजहद कहेंगे। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं ये, मैं जानता हूं कि इस वक्त काफी लोगों के मन में जज्बात उभरे और वो वाजिब है, क्योंकि देश के हालात ही इस तरह से बनाए जा रहे हैं। लेकिन एक साथी के नाते मैं ये कहना अपना फर्ज समझता हूं और मैं उसे दोहराऊंगा, बावजूद इसके कि कुछ लोगों को वो पसंद ना आए, कि आज का भारत कभी भी ऐसी फिरका पर ताकतों का अधीनता नहीं मानेगा जैसे इस समय एक संयोग से कुछ लोग शासन पर बैठ गए। लेकिन इस बात की तकवारी हमें आपको करनी पड़ेगी। आप कंधे से कंधे मिलाकर करना चाहें, आप अलग से चलकर करना चाहें, ये आपकी मर्जी है। कांग्रेस पार्टी तो उन हर शख्स के साथ चलने को तैयार है जिसने गांधी जी की नजरों से, जवाहरलाल जी की नजरों से, इंदिरा गांधी की नजरों से भारत को देखा है और उसके प्रति समर्पण की भावना रखी। मानवता ही कांग्रेस पार्टी का मुख्य उसूल है। अगर मानवता न रह जाए, केवल सत्ता की भूखी रह जाए, ऐसा कभी भी कांग्रेस ने मंजूर नहीं किया है और न ऐसा करेगी।
तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कि आज दुनिया में कुछ ऐसी ताकतें हैं देश के बाहर जो जोर जबरदस्ती के साथ अपनी बात को अवाम से मनवाना चाहती, जिसका नजारा हम इराक में देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का ये स्थापित सिद्धांत और निर्णय है कि इराक के ऊपर जो हमला करने की कोशिश अमेरिका द्वारा की जा रही है वो बिल्कुल नाजायज है। उस हमले में किसी को उनका समर्थन नहीं करना चाहिए। शायद मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ऐसे ही एक मौके पर हमारे कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े नेता, प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी बगदाद तक गए थे। उनके हाथ में उस समय ताकत नहीं थी, प्रधानमंत्री का पद उनके हाथ में नहीं था, लेकिन अमन चैन के लिए, केवल न्याय के पक्ष में खड़े होने के लिए और अन्याय के खिलाफ बात उठाने के लिए वे दुनिया के कई देशों में गए और फिर अंततः बगदाद भी गए। इसलिए कांग्रेस पार्टी किसी से भी उन मामलों में कहीं कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है जिन उसूलों और सिद्धांतों ने कांग्रेस पार्टी को भारतवर्ष के उस पार्टी के रूप में बनाया है जिसके रहनुमाई में गांधी जी, जवाहरलाल जी, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद, इन लोगों ने जिस पार्टी की रहनुमाई की है वो पार्टी उनके वसूलों को कभी नहीं छोड़ेगी, चाहे उनके ऊपर कुछ भी हमारे ऊपर इसके लिए कोई मुश्किल क्यों ना आए। हम आपसे वादा करते हैं कि इस देश की जमहूरियत, इस देश के हर धर्म, हर भाषा के बोलने वाले लोग बहुमत से हिंदुस्तान को सेकुलर बना के रखना चाहते हैं। हम इन थोड़े से घटनाओं से ऐसा न स्वीकार कर लें कि हिंदुस्तान में अब सेकुलरिज्म का कोई भविष्य नहीं है। हिंदुस्तान सेकुलर रहेगा, हिंदुस्तान सेकुलर है, और आने वाली जितनी भी मुसीबतें सेकुलर रहने के लिए करनी होंगी, हम सब मिलकर कंधे से कंधे मिलाकर उनका मुकाबला करेंगे और जमहूरियत ही हिंदुस्तान में सेकुलर की रक्षा करेगी। इस शब्द के साथ मैं मौलाना असद मदनी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने ये इजलास बुलवाया, और उनके जो फैसले होंगे यहाँ पर उन पर हम सब लोग बहुत बारीकी से देखेंगे और जहां भी संभव होगा हम उनकी हिमायत करेंगे। जो एक बात कही गई है कि कांग्रेस के शासन में जो प्रदेश हैं वहां पर ये कार्रवाई उतनी मुस्तैदी से क्यों नहीं हो रही, इस बात का एहसास और फिक्र दोनों हम लोगों को है। काफी हद तक जो अहमदी साहब ने हम लोगों को, मदनी साहब ने सुझाव दिए थे, उन पर अमल किया जा चुका है और औरों पर अमल करने की तेजी से कोशिश हो रही है। हम उन्हें संतुष्ट करेंगे कि जहां तक कांग्रेस पार्टी के हाथ में है, हम उन वसूलों के साथ हैं जो वसूल हिंदुस्तान के लिए हैं, समूचे देश के लिए हैं, समूचे कौम के लिए हैं, और जिनके लिए गांधी जी ने बलिदान दिया, इंदिरा जी ने बलिदान दिया और श्री राजीव गांधी ने बलिदान दिया। हम उस बलिदान को कैसे भूल सकते हैं, ये आपको खुद को याद रखने की ज़रूरत है। हाँ, हम बहुत तलखी बात तो नहीं कर सकता, बहुत किसी को बुरा भला तो नहीं कह सकता, लेकिन एक इंसानियत के नाते हम ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि इंसानियत का जो संबंध है, जो एक लोगों के बीच में पहचानने का एक हिस्सा है, वह इंसानियत कांग्रेस में उसकी वसूल वही है। हम उन्हीं शब्दों को आप तक ले जाना चाहते हैं, और आप जब भी कोई ऐसा फैसला करेंगे जो समूचे देश के लिए महत्वपूर्ण होगा,
समूचे कौम के लिए महत्वपूर्ण होगा। कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी रहेगी, ये हम आपको वादा करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। मोहतरम हजरात, जमीयत उलमा हिंद ने एक मिशन शुरू किया है। वो मिशन है दलित मुस्लिम इत्तेहाद का। इत्तेहाद का मतलब यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हुक्म दे रहे हैं हमको कि गरीबों के साथ प्यार का मामला करो, गरीबों के साथ मोहब्बत का मामला करो। वो लोग जिनके साथ नाइंसाफी हजारों साल से होती रही, वो लोग जिन्हें पानी पीने से मजबूर किया गया, वो लोग जिनका चमड़ी को दागा गया, वो लोग जिनसे इंसान बने रहने का हक छीन लिया गया, तो जमीयत उलमा उन लोगों को अपने सीने से लगाना चाहती है। इस्लाम दावती मजहब है। मैं उसी दलित मुस्लिम इत्तेहाद के उस कड़ी का आंध्र प्रदेश, जैसा कि मैंने तारुफ कराया था, आंध्र प्रदेश में दलितों के एक शायर हैं, इनकलाबी शायर हैं जनाब गदर साहब। मैंने कहा था कि लोग उनके अशार को, उनके गीत को सुबह भजन की तरह सुनते हैं वहां के दलित। मैं उनको दावत दे रहा हूं, वो आए और हाँ, जोरदार इस्तकबाल कीजिए, जोरदार। वो आए और अपना गीत पेश करेंगे। देखिए, जोरदार आदमी है। तशरीफ लाइए जनाब। हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, लेकिन ये आवाज को लूटने वाला लुटेरे वाले भी है। मैं दो तीन शब्दों में गीत गा के, जो वहां पर स्टेज पे महान लोग हैं, उनके स्पीच सुनने का मेरे को वक्त मिला है, और उलेमा को सलाम, लाल सलाम है, और जो पर है, यहां पर है, आप लोगों को भी लाल सलाम है। साथियों, अभी तक ये लोग बताए कि हमारा जो हिंदुइज्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 लोग, फिर 500 होता है अनटचबल शेड्यूल कास्ट, ये कोई गिनती में नहीं आते। 20,000 करोड़ है, और फॉरेस्ट में रहते हैं। वो ट्राइबल है, जंगल में रहते हैं, वो 10% है। ये 20 और वो 10, 30 हो गए। फिर उसके बाद ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में नहीं आते, अनटचबल्स, उनके हिंदू ही नहीं बोलते हैं। द आउट ऑफ दिस फ्रेम जो मुस्लिम्स है वो 20,000 है, और क्रिश्चियंस है वो आउट ऑफ हिंदुइज्म है, बुद्ध है वो है। तो फिर ये 20, 25, ये 20, 10 लेके पूरा 60,000 ये लोग है, तो 1% ब्राह्मण कैसा राजा बनता है, ये सवाल है आज का। तो ब्राह्मण अपन का वोट से, अपना के नोट से बना है, यही चर्चा चल रहा है। मैं सबको सलाम करते हुए, दोस्त, इस देश के अंदर हमारा इमाम साहब भी ठीक तरह से बताया, एक तरफ बाबरी मस्जिद बीजेपी ने डिस्ट्रॉय कर रहा था, उसी टाइम अपना कांग्रेस का यहां पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री था। अब कैसा माने हम, कैसा माने ये लोगों को। और दलित भी कभी भी अनटचबल्स इस देश के अंदर कहने, उसीलिए दी अनटचबल्स ये 70% है ना, ये 70% कुछ लोग लड़ रहे हैं। कल नहीं परसों मैं देखा फोटो के अंदर, जो हिंदू का जहां पर रामलीला का तोड़े का मीटिंग हुए, तो एक तलवार लेके उठा है। क्या वो टेररिस्ट नहीं होता क्या? तो इसलिए मैं एक छोटा सा गीत में
ये लोगों को सुनाने के लिए टूटी फूटी हिंदी हो रहा है। ये महान लोगों को देख के तो डर हो रहा है, कैसा बात कर रहा है। फिर भी मैं सुनाता हूं। पहले से पहले बीजेपी कितना होशियार है। एक तरफ अपना खून पिया है गुजरात में, दूसरी तरफ अपना आदमी को अपना अंदर ही लड़ाने के लिए अपना खून का अपना इंटेलेक्चुअल को प्रेसिडेंट बनाया। मैं तब एक गीत लिखा हूं दिल में दर्द हो के, वो गीत सुनाता हूं। सलाम अलैकुम कलाम साहब, कलाम साहब, सलाम वालेकुम कलाम साहब, कलाम साहब, बीजेपी जाल में फंस गए सो गुलाम साहब। सलाम वालेकुम कलाम साहब, कलाम साहब, सलाम वालेकुम, बीजेपी जाल में फंस गए सो गुलाम साहब। वाह वाह क्या बात है गुजरात का नजराना, वाह वाह क्या बात है। बाबरी के सीने पे बनाया बादशाह तुझे, सलाम वालेकुम। प्यारे मुस्लिम भाई, इस देश के अंदर आपका देश नहीं होता है, दैट इज द प्रॉब्लम। रहे तो हिंदुस्तान में रहो, नहीं तो कब्रिस्तान जाओ। दिस इज द फेट ऑफ मुस्लिम्स। और अनटचेबल्स जो है उसका गांव ही नहीं आता। ये गांव हमारा, ये गली हमारा, ये गली हमारी, ये दिल्ली हमारा। तो जालिम कौन रे, उसका जुल्म क्या है रे। वोटों के लिए हम हैं, नोटों के लिए हम हैं, रिक्शा के लिए हम हैं, मेहनत के लिए हम हैं। अपना बिना वोट नहीं, सीट नहीं, पार्लियामेंट नहीं, तो बीजेपी कौन रे, अद्वानी कौन रे, ए जालिम कौन रे, उसका जुल्म क्या है रे। बंदूक को हम उठाया, हम तेरे जान बचाया। बंदूक को हम उठाया, हम तेरे जान बचाया। मुर्दों को हम उठाया, शहनाई हम बजाया। अपना बिना महल नहीं, बाजार नहीं, रोटी नहीं, चाय नहीं, तो ए जालिम कौन है, उसका जुल्म क्या है। जे जालिम कौन है, उसका जुल्म क्या है। जब रोड हम बनाया, मारुति उनकी चलती। जब चाबी हम बनाया, तिजोरी उनकी खुलती। मैंने से जीना अपना, अरे खून पसीना अपना। वो बने माल, अपनी हाल बेहाल है। ये जालिम कौन है, उसका जुल्म क्या है रे। फैक्ट्री में कष्ट अपना, वो फैक्ट्री के मालिक। बंगले में कष्ट अपना, वो बंगले के मालिक। हम जिंदगी जलाई पर उनको रोशनाई। सूरज को जगाने वाले हम ही अंधेरे में क्यों। ये जालिम कौन है, उसका जुल्म क्या है रे। इस तरह पूरा भारत के अंदर जालिमों को क्वेश्चन करने का वक्त आ गया। एक तरफ अपना 60% 70%, एक मैन एक वोट, एक आदमी एक ही वोट देने का जो अंबेडकर लिखा है, वो वोट से राजा बनना है। दूसरी तरफ इस देश के अंदर पूरा जंगलों में लोग, द ट्राइबल्स, शेड्यूल कास्ट, मुस्लिम्स, नागा, मिजो, त्रिपुरा, मणिपुर, कश्मीर, पूरा इंडिया के अंदर जंगल के अंदर लोग, आग है ये आग है, ये भूखे पेट की आग है, ये आंसुओं की अंगार है, ये और बढ़ती जा रही, ये धधकती हुई आग है, आग है ये आग है। चिटिया चली कतार से, तासौप बड़ा मगरूर से, पर क्या करता ये कि साला मरा हजारों वार से। आग है ये आग है, ये भट्टी लगी लोहार की, ये चकली चली कुमार की, ये डपली दल दल बोल रही है, नौबत आई अंधार की। आग है ये आग है, ये भूखे पेट की आग है। चिटिया चली कतार से, तासाप बड़ा मगरूर से, पर क्या करता ये कि साला मरा हजारों वार से। नहरों का जल का साथ है, खेतों का हल का साथ है, ये बीज भी हमसे कर है, हम मजदूर के औलाद है। ये दुश्मन को पहचान लो, नंबर 1 टेररिस्ट इन इंडिया वर्ल्ड।
अमेरिका है, नंबर 1 टेररिस्ट अमेरिका है, बुश है। अपने दुश्मन को पहचान लो, सर पे कफन बांध लो, जान दे के अपने राज को लाएंगे लाएंगे रे, आ गए ये बुके पेट के आ गए। लाल मैं दावत दे रहा हूं जमीयत उलमाए अहले हदीस हिंद के सेक्रेटरी जनरल मौलाना असगर अली इमाम मेहदी सलफी साहब को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह वबाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। मोहतरम सदर मजलिस, उलमाए किराम और दूर दराज से आए हुए मिल्ली नौजवानों, साथियों और बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल के फजल व करम से एक नेक मकसद के तहत हम यहाँ हाजिर हुए हैं और जमीयत उलमा हिंद इसकी दाई है। वो हर तरीके से हमारी तशजी, दुआओं और हर तरह से ताउन की मुस्तहिक है। हम उनको मुबारकबादी देते हैं इस इक़दाम के ऊपर। ऐसे शर्र फसाद के ज़माने में जिस वक्त के मिल्लत इस्लामिया ख़ास तौर पर पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पर हिंदुस्तान में दो चार हो रही है। हकीकत यह है कि बहुत सी तकरीरें हुई, तजावीज़ पेश हो रही हैं, लेकिन सबसे अहम तरीन चीज़ जो मदारिस इस्लामिया के तहत हमको कहनी है वो ये है कि इस्लाम का और मदारिस इस्लामिया का वजूद रुए ज़मीन पर जिस वक्त हुआ था, उस वक्त एक नारा लगाया गया था जिसको कुरान करीम ने नोट किया है। उस वक्त कहा यह गया था, ला तस्माऊ लिहाज़ल कुरान, इस कुरान को मत सुनो, और ये कि सुनने वाले की आवाज़ को दबा दो और उनको ख़त्म कर दो। उस वक्त भी ये जो हालात इस वक्त हैं इसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा सख्त थे, बहुत ज़्यादा संगीन थे। अरबाबे इक़्तिदार और जालिम इससे ज़्यादा ताकत व क़ुव्वत के साथ मौजूद थे, लेकिन इस कुरान का और कुरान वालों का भी एक मनसब व मकाम था और उनकी एक जिम्मेदारी थी। उन्होंने इस कलाम पाक को घर घर पहुंचाया था। हमने ये तजवीज़ रखी है कि हम में से हर एक बच्चा, हर एक मुसलमान कुरान करीम को पढ़ेगा, पढ़ाएगा और ये कि इस दीन पर, इस कुरान पर आमिल बन करके अपने आप को साबित करेगा कि हम कुरान वाले हैं, हदीस वाले हैं और इस इस्लाम के पासबान हैं, उसके सिपाही हैं। लेकिन मैं एक चीज और कहता हूं, आपके कानों में अगर मेरी आवाज जा रही है कि ये अहद भी लेकर के उठें इस एहसास जिम्मेदारी के साथ और तमाम फराइज में सबसे बड़ा फरीजा समझ करके कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने सिर्फ हमको पढ़ने और अमल कर लेने के लिए ये कुरान करीम नहीं दिया है, बल्कि ये अमानत है जिसे उसने आसमानों और जमीनों और पहाड़ों को, सबसे बड़ी बड़ी मखलूकात को दिया था। उन्होंने इसको लेने से इनकार कर दिया था कि ये अमानत ना हम उठा सकते हैं और न इसे पहुंचा सकते हैं। ये अमानत हम ये अहद करके उठें, उलमाए किराम हो, तालिबान उलूम नबूवत हो या मदरसे के वो मुदर्रिसीन हो, कि वो अपने मुस्लिम भाइयों, अपने गैर मुस्लिम भाइयों को जिनके लिए ये अमानत हम लेकर के आए थे, हम उसका एक एक हर्फ सुनाएंगे। ये चीज अगर हम नहीं करते तो हकीकत में हम ही मुजरिम है। वक्त होता तो बताता कि इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने किस तरीके से, जिस जमाने में मुसलमानों की हुकूमत थी, उलमाए इस्लाम सारी दुनिया में काम कर रहे थे, उसके बावजूद आपको यह एहसास था कि ऐसा न हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल के सामने इस अमानत को गैर मुस्लिमीन के सामने न अदा करने की वजह से हम मुजरिम गर्दान दिए जाए।
ایک بات اور یہ ہے کہ ہم میں خوف و ہراس یا یہ کہ جذباتیت نہیں آنی چاہیے. کل جب تاتاری بغداد سے مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا رہے تھے, ایسی حالت میں بھی یہودی آ کر کے تاتاری آ کر کے یہ کہتا تھا کہ یہاں ٹھہرے رہو. مسلمان اتنے مرعوب تھے کہ ہم ہتھیار لے کر کے آئیں گے, تم کو قتل کریں گے. ان حالات میں بھی اسلام برقرار رہا, مسلمان برقرار رہے. آج جبکہ یہ لوگوں کا نہیں, مسلمانوں کا نہیں, اہل ایمان اور ایمان کے درس دینے والوں کا یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ان حالات میں ہے, تو ہم کبھی بھی مایوس نہیں ہو سکتے کہ اس دین پر کسی طریقے سے حرف آئے گا. اسی کے ساتھ ایک آخری بات جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس دیش کے لیے ہم نے اتنی قربانیاں دی ہیں کہ پھانسی کے پھندوں کی گنتی